Is the screen visible to everybody? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. Yes, Good ma'am. afternoon. Okay. Good afternoon, everybody. Today, again, in the fourth unit, which is disorders and health problems of a child, we will see helminthic infections. Any idea anybody is having regarding helminthic infections? helminthic word कभी सुना है आपने? Anybody have heard Yes, helminthic word anywhere in the past? yes, ma'am. सुना है. helminthic, हाँ, what क्या सुना है आपने उसके बारे में? हेलमिंथ सुने हैं कभी? Yes, ma'am. शायद ये केचुए वगैरह से रिलेटेड है, मैम. हाँ, यू मैम कैन से वर्म से worms, इन्फेक्शन you हो won't जाता है। say केचुए. मैम जो वॉर्म्स हाँ होते हैं उनसे हाँ, very good, you all can say. He was also correct, but he has stated in a very layman manner. हेलमिंथिक मतलब होते हैं worms, या फिर यू कैन से पैरासाइट्स. worm कैसे भी टाइप के हो सकते हैं. इट कैन बी राउंड worm, टेप worm, फ्लूक्स, कोई सा भी टाइप के हो सकते हैं. So today we will see about helminthic infections. Again, in the fourth unit, it's over here, helminthic infections. So helminthic infection, or you can say helminthiasis. Iasis लग जाता है, what you call it as inflammation. So helminthiasis, or else it is also known as worm infection. जो वर्म होती हैं उनकी इन्फेक्शन इज एनी मैक्रोपैरासिटिक डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इन विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज बीन इन्फेक्टेड विद पैरासिटिक वर्म्स. इट इज ऑल्सो नोन एज हेलमिन्स. तो पैरासिटिक वर्म्स को वी से हेलमिन्थी. वन सेकेंड आफ्टर द क्लास. ओके. So these are one, they are also known as worm infections. जिनको हम, if anybody, if a person is having any, a particular person is having it any particular part of a body, particular part of a body से we do generally we refer as intestine. intestine में ज़्यादातर problem हो जाती है और GI tract पे. Then these are numerous species of these parasites which are broadly classified into tapeworms, flukes, roundworms. They often live in the GI tract of their host, but they may also bury into their organs where they induce physiological damage. ये species जो हैं parasites हैं, ये classified into as in tapeworm में it is classified flukes or else roundworms में रहते हैं. So ये usually you will be finding it in the gastrointestinal tract of a particular person, जो भी host है उनका. बट वो ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं, बरो बना सकते हैं अपनी और वहाँ पे रह सकते हैं, और जिसकी वजह से फिजिकली द पर्टिकुलर चाइल्ड में हैव सम और द अदर डैमेज, क्योंकि वो बॉडी को इज इफेक्टिंग, majorly affecting, that is why. And many a times you will see they may also reside in the blood vessels as well. Epidemiology, talking about the first, which is major, it is a major disease burden among children in developing countries. It is a major disease burden. ये सबसे ज़्यादा in the developing countries you will be finding these only. They have been grouped into 3 groups which affect a particular child or the person suffering from them. First is tapeworm, which is also known as cystodes. Then roundworms, which are also known as nematodes. Flukes, which is not common in children but common in adults, it is known as trimadodes. So these 3 other classification, under this we will see tapeworm, roundworm and flukes. How are helminths transmitted? helminth transmit कैसे होती है? helminths are what? अभी I told you all. helminths है क्या? Don't simply listen and say yes you got. You should understand. That is why we are going so slow. helminths अभी बताया है. Anybody have any idea? Just I told you all helminths क्या होते हैं. एक और नाम क्या है helminths का? Worm. Very good. Worms, any type of worms or parasitic worms. So how they are being transmitted? Via contaminated food,
then contaminated water through piercing the skin, then habits like eating mud in children, which is pica, in which you all have written the assignment as well. So कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रही है? कंटैमिनेटेड फूड कंटैमिनेटेड है या वाटर कंटैमिनेटेड है थ्रू पियर्सिंग द स्किन, जैसे हुकवॉर्म्स हैं. देन mud, not only mud, habits like eating mud in children. Pica is any nutritive substances if they are intaking, तो उससे हो सकती है. Then there are some predisposing factors. What do you get in your head when I say predisposing? Predisposing मतलब क्या होती है? Pre and disposing, ऐसे फैक्टर्स जो कि बेबी को रिस्क में डाल सकते हैं, और अ पर्सन whosoever is having any problem उसको और भी ज़्यादा रिस्क में डाल सकते हैं. जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस इफ यू विल टेक, if a person is like वेरी मच इनटू रैश ड्राइविंग, तो वो क्या करेगा? वो अगर बहुत रैश ड्राइविंग है, गंदे से चला रहा है, तो उसका एक्सीडेंट होगा. एक्सीडेंट हो गया, ठीक है. इफ समटाइम्स इट्स एन अक्यूट एक्सीडेंट, समटाइम्स इट्स एन क्रॉनिक वन. अक्यूट हो गया, ठीक है. क्रॉनिक होगा तो क्या होगा? इंजरी की वजह से, ठीक है, थोड़ा इंजरी हो गया जिसकी वजह से फिजिकल इंजरी हो सकती है. सो एनी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की मतलब क्या होती है? एक कोई से भी ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से अ पर्टिकुलर चाइल्ड में हैव सम रिस्क. तो कौन से हैं? अनसैनिटरी कंडीशंस, malnutrition, improperly cooked meals, improper hygiene, हाइजीन नहीं प्रॉपर है, मील जो बने हैं वो अच्छे से कुक्ड नहीं है, हाफ कुक्ड है. मैल न्यूट्रिशन है. मैल न्यूट्रिशन क्यों होगा? क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं मिला है. प्रॉपर खाना नहीं मिला, क्यों? that we had seen under malnutrition topic. और else unsanitary condition means what? साफ सफाई जहाँ नहीं है. अनक्लीन, यू कैन से, अनसैनिटरी नहीं लिखना है अगर आपको, तो यू कैन राइट अनक्लीन कंडीशन और अनक्लीन एरियाज और अनक्लीन प्रैक्टिसेस. काम करते हुए, खाना खाने से पहले हाथ ही नहीं धोया, गंदा कुछ काम दे वर डूइंग, उसी से काम कर लिया. और एज द वन हु इज कुकिंग is not properly cooking means is having or have kept the hands contaminated या nails बड़े हैं, so that all comes under unsanitary conditions. Then vulnerable group. Vulnerable means what? Vulnerable मतलब पता है आपको? Vulnerable meaning you all should know, जिसको ज्यादा चांसेस होने की, जो जिसको ज्यादा बीमारी होने का चांसेस है, यू कैन से. इसको वनरेबल ग्रुप मतलब जिनको जल्दी इजीली हो जाएगा. यह वनरेबल मीन्स जिसको जल्दी हो जाएगा. फॉर यू वनरेबल पीपल आर हु, आप भी वनरेबल पीपल को ही चूज करते हो ना अपने अकॉर्डिंगली. इफ यू हैव सम वर्क, फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव टू प्रिपेयर एन असाइनमेंट और लास्ट डेट होने वाला है एंड यू नीड समबडीज हेल्प, सो यू विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ वनरेबल पर्सन, जिसको आपको लगता है कि हमें हेल्प जल्दी मिल जाएगी, जिससे उसी को ज्यादा अप्रोच करोगे कि जिससे नहीं मिलेगा उसको यू विल अप्रोच. यू विल बी अप्रोचिंग पीपल द वंस यू फील ये जल्दी से हेल्प कर देंगे, ज्यादा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर देंगे. वो ये वनरेबल ग्रुप में जिसको प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है, कौन प्रोन है उस पर्टिकुलर डिजीज को होने से. सो प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्री स्कूल को हो सकता है, स्कूल जाने वालों को हो सकता है, अडल्ट्स एंड गर्ल्स को इट इज कॉमन. ऑन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, जो कंसीव करने लायक वाली एज है. वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग का मतलब कभी सुना है आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू डोंट रिस्पॉन्ड ओनली, आई एम अननेसेसरली वन वे कम्युनिकेशन ही चलता रहता है यहाँ. तो प्री चाइल्ड बेयरिंग एज मतलब क्या होती है? चाइल्ड बेयरिंग मैम डिलीवर रिप्रोडक्टिव करने एज. वाली. हाँ यू कैन से, बट चाइल्ड बेयरिंग एज मतलब होती है जब बर्थ देने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना, बर्थ देने की प्रोसेस जब डिलीवरी होने का, दैट इज द वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज. देन
और एल्स यू कैन टेक इट इन अदर वे ऑल्सो, चाइल्ड बेयरिंग एज मीन जब बन सकते हैं, और एल्स व्हाट ऑल टॉप है प्री स्कूल एज ग्रुप में, स्कूल गोइंग में, और एडोलसेंट गर्ल्स आर मोर प्रोन टू गेट दिस पर्टिकुलर डिजीज। देन नेमाटोड्स और राउंड वॉर्म्स, ये कौन कौन से हैं यहाँ पे, राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, होक वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, strongyloids, whipworm, इनके सबके images I have shown, whatever is important we will just see those, इनके सबके just the images I have shown. First picture you can see roundworm, so ये वाला picture is roundworm, 1 minute, roundworm, these are roundworms, these are pinworms, these are hookworms on to the left, threadworms are these, you can see over here stool में जो threadworms जो दिख रहे हैं, these are all threadworms. Then strongyloids resemble like this, whipworm look like this. Then symptoms of worm infestation in children, अब किसी बच्चे को worm infestation है तो first of all you all can see this image, if you can just don't think about threadworm, just see a child looking like this will have abdominal pain or every time they may have some or the other issues. So उनको symptoms क्या क्या होंगे, first is loss of appetite, तो भूख ही नहीं लग रही है, या फिर एक्स्ट्रा भूख लगेगी क्योंकि वर्म्स है अंदर, सो दे आर ईटिंग देयर फूड ऑल्सो, और इसलिए उसको ज्यादा लग रही है या तो बिल्कुल नहीं लग रही है. देन स्टमक एक विल बी देयर, मोर ऑफन यू विल सी स्टमक एक या डिस्कम्फर्ट विल बी देयर इन स्टमक. Itching around the anus के around itching they may experience, every time itching ही हो रहा है. Blood in stool, melena they may experience. Irritation and sleeplessness, irritation, they will be irritated, why they are having first of all itching, then they may have stomach ache also, and they may have discomfort in sitting, lying down, because since they are having itching is the main cause, and discomfort again. Then irritation and sleeplessness they may experience moreover at the night time. Then unexplained weight loss will be unexplained, nobody will be able to explain कि भाई weight loss हो ही क्यों रहा है. Then lack of weight gain, अब weight loss है that means weight properly gain नहीं हो रहा है. There are some more like worms visible in stool, स्टूल में वॉर्म्स दिख रहे हैं, लाइक इन द पिक्चर ओवर हियर, ये वाला पिक्चर में इट इज क्लियरली सीन कि वॉर्म्स दिख रहे हैं स्टूल पास करते टाइम. देन एनीमिया हो गया दैट पर्टिकुलर किड को, व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ईटिंग, खा रहे हैं तो सब वॉर्म्स भी खा जा रहे हैं सब. देन नोजिया, वॉमिटिंग, दे मे हैव rash as well, or else urinary tract infection, diarrhea they may end up with. So these were all symptoms which were loss of appetite, stomach ache, itching around the anus, blood in stool, irritation and sleeplessness. Sleeplessness you all can see it can be relatively in the night hours. Unexplained weight loss, lack of weight gain, and then worms visible in the stool, anemia, nausea, vomiting, rash, urinary tract infection and diarrhea. Diagnosis, how? Examination of feces for characteristics of eggs and worm. feces examination करते हैं जिसमें characteristics पता चल जाए eggs के या worms के feces में, because worms are present. Others में ultrasound abdomen और pelvis का ultrasound check करते हैं. Then complete blood count, chest x-ray, CECT head करते हैं to check. ट्रीटमेंट में एवरीबडी माइट हैव हर्ड एल्बेंडाजोल देते हैं, तो 400 mg सिंगल डोज, दिस इज सिंगल, forgot to mention L, so single dose. ट्रीटमेंट में फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट यू ऑल विल गिव, ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, स्लीपिंग, यू ऑल आर स्लीपिंग, मैम एल्बेंडाजोल एल्बेंडाजोल, एल्बेंडा डोज नहीं है, रीड इट प्रॉपर्ली, एल्बेंडाजोल. देन मेबेंडाजोल, दे आर बोथ more or less same antihelminthic drugs. Then parental pamoate, you all can see the spelling, it can be as pyrental or else it can be written as pyran, e की जगह में a, ntal
or TEL, permot. Then this is what, this is again an anti-helminthic drug. दोनों सब की सब anti-helminthic drugs हैं which are being given for worms. Usually you will see parental permeate ring pinworm के टाइम पे देते हैं. And again some other worms like cystode, which is tapeworm, then Taenia solium, Taenia saginata. This is the one which is tapeworm, this is the other one which is the Taenia solium. Then clinical features में you will be seeing in this tapeworm में nausea है, abdominal pain will be there, diarrhea, cyst of tapeworm can lodge in skin. cyst जो tapeworm की skin है वो कहाँ कहाँ पे present आ जा सकती है. cyst है अगर tapeworm में, अगर cyst है of tapeworm का, it can be in skin, spinal cord, skeletal muscles, brain में सबसे commonly, and eyes. Other clinical features you can see, which are cyst in the brain parenchyma, which is also known as neurocystic cirrhosis. Then it can cause focal seizures, generalized seizures, headache, neurological deficits, nausea, vomiting, unconsciousness, meningeal irritation. अगर eye में है तो it can cause impaired vision. Present in spinal cord, if the cyst is present in the spinal cord, it can cause pain, it can cause paraplegia or paresthesia. Paraplegia, anybody is having any idea paraplegia क्या होता है? Rest all terms you all might have got, that is I have not elaborated. Paraplegia का meaning पता है आपको? इसको भी if you will be breaking in two आपको पता चल जाएगा. Paraplegia. Anybody is having any idea? Para or plegia? Paralysis, paraplegia means paralysis, लेकिन दोनों legs का half body is involved, मतलब paraplegia, lower part of the body is being involved, जिसमें दोनों legs की paralysis हो जाती है. Then pain, paresthesia. Paresthesia you all know? At least say yes or no, children. Otherwise how will I know कि पता भी है कि नहीं. Unnecessarily you are listening या फिर नहीं सुन भी नहीं रहे. Paresthesia सुना है कभी? Paresthesia you all have heard? No, ma'am. अरे at least say yes or no. No, at least you have said no. Others are dreaming. At least yes or no बोलना चाहिए ना. It is a tingling sensation आप बोलोगे, जो आपको feet में पता चलती है, arms में पता चलती है, कहीं पे भी पता चलती है, but usually you will be finding in feet और arms में. Then cysts in muscles are asymptomatic, may be present with a nodule. अगर muscles में है तो उसमें कोई symptom तो नहीं होंगे, लेकिन nodule present रहेगा. How you will be diagnosing? Again stool examination, very importantly. सारे worm में infestation में you will be doing stool examination. Eggs or worm में, then brain में CECT will be done, and a ring enhancing lesion will be seen. ELISA test करेंगे. It is not ELISA test, it is ELISA test will be done. Now ELISA test is very common. At least tell the full form of ELISA test. Akanksha, tell ELISA का full form. मैम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे. हाँ गुड. ये क्यों करते हैं हम? ब्लड में मैम एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए. हाँ वेरी गुड. और क्यों करते हैं? और किसी चीज के लिए नहीं करते हैं? अनीमिया को पता करने के लिए भी करते हैं, कौन से टाइप की है. लेट्स सी. नेक्स्ट इज ओक्यूलर सीटी. ओक्यूलर कहाँ से वर्ड आई है? ओक्यूलर और ओक्यूलर वट एवर यू से. ओक्यूलर कहाँ से आया है? अभी व्हाट ऑल थिंग्स यू हैड सीन. सीटी का मीनिंग क्या होता है? ओक्यूलर आया है ऑप्टिक से, आंखों से. लेट मी हैव मैम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी. हाँ that is okay, but over here this is ocular, आंखों से related.
tomographic scan or else ultrasonography or skin biopsy. These all, in this way diagnosis can be made. Then complications, the particular kid who is suffering from this worm may be having seizures, they may have neurological deficits, they may have vision impairment, very important, then they may have malnutrition, they may have intestinal obstruction. कौन से complication is seen? Seizures, neurological deficits, vision impairment, malnutrition, nutritional obstruction, intestinal obstruction, sorry. Then treatment के लिए for teniasis you'll be giving, a particular person will be given praziquantel, that is a single dose medication which is to be given. I know that ये तो आपने सुना ही नहीं होगा. These are tablets forms which is again an anti helminthic medication, जिससे worms को आप एक्सेसिवली मल्टीप्लाई करने से बच सकते हैं. मीन्स अगर जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको रोक सकते हैं, या फिर उसका ग्रोथ यॉल कैन, अ पर्टिकुलर पर्सन कैन सप्रेस इट. इसको इन्फेक्शन को हम ट्रीट करने के लिए वी गिव, सो दैट जो अगर ये वर्म्स आर गॉन एंड रिसाइडेड, बरो बना लिया उन्होंने, और एल्स वो ब्लड स्ट्रीम में चले गए हैं, तो वो टाइम में इसको दे कैन बी गिवन. दीज आर एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स. इसको क्यों देते हैं? टू किल द पर्टिकुलर वर्म. देन नेक्स्ट इज, और सिंगल डोज ही देते हैं 5 to 10 mg per kg. अब इफ सम पीपल आर लिसनिंग केयरफुली, वो पूछ सकते हैं फिर ये इस ड्रग में और एल्बेंडाजोल में क्या डिफरेंस है? एल्बेंडाजोल ज़्यादा इसलिए दे देते हैं, दूसरा इसलिए कम दे देते हैं, बिकॉज कंपेरेटिवली एल्बेंडाजोल की रेट इज हायर. एल्बेंडाजोल, और सेकेंडली एल्बेंडाजोल की डोज भी यू कैन सी 15 mg per kg per day, और ये 5 to 10 mg per day they are giving, that to only OD they are giving, और सिंगल डोज दे रहे हैं. एंड प्लस एल्बेंडाजोल इज गिवन 15 mg per kg per day BD, that is twice a day for 30 days it is given. And secondly the rate is higher in albendazole. Albendazole से comparatively प्रेजिंटोल से आप इसीलिए आप ज़्यादा दे रहे हैं, बिकॉज it helps in the improvement. इसका improvement rate is higher than this one. Then next one is niclosamide, that is given 50 mg per kg once only. Then in this case this is not given. For neurocystic cirrhosis it is given this praziquantel is being given 50 mg per kg per day, but it is being given TDS for 30 days, 3 times for 30 days. Then anti-seizure medications are also given, which is carbamazepine. ये कभी नाम सुना है हमने? carbamazepine, Rozipine, whatever you say. नो मैम. एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए देते हैं, एंटी सीजर ड्रग है ये. एपिलेप्सी या फिर सीजर, अभी हम इतना सारा पढ़ रहे हैं ना, एंटी सीजर मेडिकेशन, इसको रिलीफ करने के लिए, या फिर अगर पर्टिकुलर किड इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ पेन, या फिर एनी मेनियाक नहीं होते कुछ लोग, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले, वो लोग को भी इट कैन बी गिवन. तो इसको एंटी सीजर या फिर आप एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वी हैड सीन ब्रेन को इट इज अफेक्टिंग. तो जो अबनॉर्मल एक्टिविटीज ब्रेन करता है उसको कंट्रोल करने के लिए. देन टू डिक्रीज ब्रेन इन्फ्लेमेशन स्टेरॉइड्स आर गिवन. देन सर्जरी कर सकते हैं. स्टेरॉइड्स पता है क्या है? कभी किसी को स्किन इन्फेक्शन अगर हुआ होगा तो दे माइट बी गिवन स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स पता है आपको क्यों देते हैं? कैसे टाइप के होते हैं, कैसे देते हैं? टैबलेट्स भी होते हैं, स्प्रे के फॉर्म में भी आते हैं, इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, और एल्स यू कैन से व्हाट यू से लोशन टाइप के भी आते हैं. हाँ, वेरी गुड. इनहेलर्स भी आते हैं. कौन सा इनहेलर आता है, नाम पता है उसका? किसी का एक का, जो भी सोन टाइप के होते हैं ना, जिसके भी नेम के आगे, नेम के पीछे सोन रहती है,
फ्लुकोनाजोन, जोन, SONE, वो टाइप के होते हैं. देन नेक्स्ट, सर्जरी इफ फीचर्स ऑफ रेज्ड ICP. अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज है तो सर्जरी हो सकती है जिसमें इंट्राओक्यूलर सिस्ट की भी हो सकती है. इंट्राओक्यूलर मीन्स व्हाट? इंट्राओक्यूलर, इंट्रा मीन्स व्हाट? इंट्रा का मीनिंग क्या होता है? इंटर और इंट्रा में मीनिंग क्या होती है? मैम Inner. इंट्रा किसी चीज के अंदर ओकरिंग हाँ, मैम ओक्यूलर Inside. ऑप्टिकल नर्व. वेरी गुड. वहां पे अगर कोई सिस्ट हो गई अंदर, आंखों के अंदर, यू कैन से, अगर कुछ इशू है और सम सॉर्ट ऑफ सिस्ट इज देयर. सिस्ट आई एम सेइंग, तब से सिस्ट का मीनिंग आपको पता है? सिस्ट का मीनिंग होता क्या है? एनी टाइप ऑफ वाटरी फिल्ड ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर पर्सन, या फिर कहीं पर भी. कभी वो पेनफुल रहती है, कभी पेनफुल नहीं रहती है. और बहुत ऐसा नहीं है कि सिस्ट है तो इट इज अ कैंसरस ग्रोथ. आप ये नहीं कह सकते हो. मेनी अ टाइम्स मैम इट इज नॉट एट ऑल. हाँ बोलो. मैम सिस्ट को ल्यूमन भी कह सकते हैं. नहीं नहीं, अरे विच किड इज हियर? पढ़ते हो आपकी इधर उधर? यू आर ब्रिंगिंग किड्स आल्सो हियर टू स्टडी. ल्यूमन हु? आकांक्षा आपने पूछा है? यस मैम. ल्यूमेन और सिस्ट एक नहीं होता है. ल्यूमेन इज डिफरेंट, सिस्ट इज डिफरेंट. ल्यूमेन तो आपके नॉर्मल ऑर्गन्स में यू कैन सी. आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने? यस मैम. So you have seen. Lumens are not this. आप cyst बोलते हैं. Cyst are like fluid filled spaces. Fluid filled रहते हैं, or else you can say fluid filled एक substance you can say which is not at all cancerous. फ्लूइड से भरा हुआ रहता है, लेकिन कभी कभी उसमें पेन आप बोल सकते हो सकता है. कभी कभी ऐसा है कि पेन नहीं हो सकता है. अगर अर्ली डिटेक्ट हो गई कोई सी भी चीज तो वो डेफिनेटली अर्ली ट्रीट हो जाएंगे. बट अगर सिस्ट भी डिपेंड करता है ना हाउ द सिस्ट इज फिल्ड. अब सिस्ट किस चीज से फिल्ड है? एक्सेसिव इन्फेक्शियस अगर सिस्ट है तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा. वो पहले थोड़ा सा इन्फेक्शन है, फिर और बढ़ेगा, फिर वो एब्सेस फॉर्मेशन ले लेगा. सो देन उसके बाद से डेंजरस हो जाएगा. सो इट इज डिपेंडेंट कैसे टाइप का है, एंड डिपेंडेंटली द सर्जरी विल बी प्रैक्टिस की होनी है कि नहीं. हाउ यू विल बी प्रिवेंटिंग दिस? प्रिवेंशन इज फॉर द ओवरऑल व्हाट यू से इन्फेस्टेशन. पूरा कोई सा भी टाइप का होगा उसके प्रिवेंशन के लिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग और प्रिपेयरिंग द फूड. खाना बनाने से, छूने से पहले, कोई भी चीज को यूज करने से पहले, सॉइल को टच करने से पहले, टच करने के बाद, टॉयलेट सीट या फिर टॉयलेट एरिया को यूज करने से पहले, उसके बाद पे, स्पेशली बाद पे तो डेफिनेटली. देन only drink bottled or boiled water in high risk areas, places without modern toilets or sewage system. Not only over here, this was written in the book, that is why I have mentioned here, but you should always prevent yourself from some of the other problems. So drink either boiled water or else don't drink at all. कहीं बाहर पर कहीं से भी मत पड़ो और पियो, or else you can use a sealed water. Deworm pet dogs and cats regularly. अगर पेट्स और डॉग्स हैं तो उनको भी डिवॉर्मिंग करना है. आगे आई विल टेल यू व्हाट इज इट. डिस्पोज ऑफ डॉग्स एंड कैट पूज इन अ बिन एज सून एज पॉसिबल. अगर डॉग या कैट है, अगर उन्होंने पास आउट किया है अपना एक्सक्रीटा, वो उसको यू हैव टू डिस्पोज ऑफ. यू माइट हैव सीन और यू माइट हैव एक्सपीरियंस योरसेल्फ आल्सो. किसी के घर में पेट्स हैं अगर, तो उनके पेट्स ने अगर कहीं पर भी स्टूल पास किया है तो डेफिनेटली घूम रहे हैं तो कहीं पर भी कर सकते हैं. मोस्टली, नॉट एवरीबडी, बिकॉज कुछ तो ट्रेन कर दे कीप की जहाँ करना है वहीं करना है. सो इट शुड बी डिस्कार्डेड सून एज पॉसिबल. थॉरली वॉश द गार्डन ग्राउंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अगर गार्डन में ग्रोन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली. आधा धुला आधा पका नहीं होना है. डोंट्स. अब ये तो डूसते की प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना है इन वर्म्स में.
infestation में do not let children play in areas where there is a lot of dog or cat poo. ऐसे एरिया में जाने से मना करना है जहाँ पर खूब सारे डॉग्स और कैट ने स्टूल या यूरिन या कुछ तो भी पास कर रखा है. नॉट ओनली कैट्स एंड डॉग्स, आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन देम, इट कैन बी एनी एनिमल. डू नॉट ईट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन हाई रिस्क एरियाज. अगर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनको नहीं खाना है. नॉट ओनली फ्रूट्स तो खा सकते हैं मेनी अ टाइम, बट वेजिटेबल्स शुड नॉट बी, कच्चा कच्चा नहीं खाना है. Do not, if they are cooking also, they should cook properly so that it should not be overcooked also, but it should be cooked itna कि it's looking कि cooked food है. Do not walk barefoot in high risk areas. Barefoot नहीं घूमना है, without slippers, without shoes नहीं घूमना है. Do not eat raw or undercooked pork, beef or fresh water fish. अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और अगर pork, मीट, बीफ या फिर कोई भी वाटर फिश खा रहे हैं तो उनको रॉ नहीं खाना है, या फिर हाफ कुक्ड नहीं खाना है, या फिर अंडर कुक्ड नहीं खाना है. आधा पका आधा कच्चा नहीं खाना है, कच्चा नहीं खाना है. और अगर इट इज अंडर कुक्ड तो दैट ऑल्सो नॉट टू बी ईटेन. Now, as I asked, told you, deworming. जैसे third point में it was written, deworm pet dogs and cats regularly. So this is deworming. Deworming सुना है कभी? De और warming. Deworming मतलब क्या Yes, होता ma'am. है? Warming मतलब क्या होता है? Warming हो रही है. Deworming मतलब अरे डीवॉर्मिंग, वार्मिंग मतलब वार्म इन्फेस्टेशन हो रही है बॉडी में. डीवॉर्मिंग मैम मतलब डिवॉर्मिंग. हटाना. हटाओगे कैसे आप? डीवॉर्मिंग कराना होता है ना चिल्ड्रन को. यू हैव सीन एल्बेंडाजोल कितने महीने में देते हैं, कितनी बार देते हैं एक साल में बच्चों को. यू गिव, नो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट डीवॉर्मिंग मीन्स व्हाट? वार्म से दूर करवाना बेबी को. टू गेट रिड ऑफ द वॉर्म आप डीवॉर्मिंग करते हैं. उसको क्या मतलब, उसकी एज क्या होती है? आइडियल एज चिल्ड्रन में एवरी 6 months आफ्टर 1 year ऑफ एज. 1 साल के बाद, जब 1 साल का पूरा हो जाता है उसके बाद 6 months में देना है. एवरी 6 months, 1 साल में देना है ही आपको. मीन्स 1 साल का होने के बाद पे हर 6 महीने में आपको albendazole की ड्रग देनी है. सो दैट deworming is practiced. Dosing intervals of 2 to 3 months if protein energy malnutrition is prevalent. अगर किसी को प्रोटीन एनर्जी malnutrition है तो एटलीस्ट इंटरवल होना है 2 से 3 महीने की. Understood? Any doubt anyone can ask. If you all have any doubt, you all can ask. Today we had seen about helminthic infections. मैम आपने सिम्टम में एनीमिया बताया था, एनीमिया कैसे हो सकता है? 1 minute.